Good morning, ninth class. As you all know that we are studying the chapter Is Matter Around Us Pure? Today we are going to continue that chapter. Okay, we will study topic 2.4 from your NCERT book, and we are going to study the topic 2.3 that is all covered with activities later. Okay, today we will study physical changes, chemical changes, pure substance, metal, metalloids and non-metals, and difference between elements, compounds and mixture. Okay, let us start. First of all, physical and chemical change. This you all have studied in 7th 8th class now. This is same. Physical changes. Substance is said to undergo physical change when only physical properties ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ? shape, size ਤੇ color ਤੇ state, ਜਿਵੇਂ solid, liquid, gas. state ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ shape, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ size. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ change ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜੇ physical change. ਦੇਖੋ change ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, shape 'ਚ change ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ color 'ਚ change ਆ ਜੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨਹੀਂ ਫੋਰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ no new substance is formed, that is physical change. एग्जाम्पल ले लो, एक वॉल है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, we can change that color to black. ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਵॉल ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕਲਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਬਸਟਾਂਸ ਫੋਰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਆਈਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਸ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਸ ਬਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਟਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਰਮ ਹੋਏਗਾ, that is physical change. Okay, now let us read chemical change. Substance is said to undergo chemical change when a new substance is formed, completely new properties. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟਾਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਅੰਡਰਗੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਬਸਟਾਂਸ ਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਿਊ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਰਜੇ, ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਔਰ ਪੇਪਰ, ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਸੀ, ਐਸ਼ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਖ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਰਿੰਗ ਆਫ ਮਿਲਕ ਮੀਨਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖੱਟਾ ਹੋਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਆਈਸ, ਆਈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਕ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੱਡ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਰਜੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸੀਬਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਂਡ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵॉल ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨੋ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਮ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਨਰਲੀ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ, ਨਾਈਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਨੋਰ ਓਬਜ਼ਰਵਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਰਜੇ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਆਈਸ, ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਦੋ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ H2O, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ NH4, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸ। ਹਾਂਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ, ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਮੈਟਲੋਇਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ,
ठीक है। मैटल्स एग्जाम्पल दी है सिल्वर, सिल्वर एक मैटल होंगे। नॉन मैटल की एग्जाम्पल दी है सल्फर। ये सल्फर सिल्वर हाइड्रोजन ये सारे की रजे एलीमेंट्स ने। पीरियोडिक टेबल रीड करोगे ना तो सारा पता चल जाएगा कि की एलीमेंट होंगे है, किन्ने एलीमेंट होंगे है, किहड़े मैटल होंगे है, किहड़े नॉन मैटल होंगे। मैटलॉइड्स किहड़े होंगे है, जिहड़े मैटल दी प्रॉपर्टीज़ भी शो कर देंगे है, नॉन मैटल दियाँ भी। ठीक है, एग्जाम्पल आ गई अर्सनिक। ठीक है, हाँ जी। नैक्सट देखते हैं बच्चे, एलीमेंट्स बारे पढ़ते हैं। रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट ने जिन्हें टर्म डिस्कवर की कि एलीमेंटिक टर्म डिस्कवर की 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। नैक्सट एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर, ਇਹਨੇ ਇਹ फ्रेंच केमिस्ट ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ एस्टैबलिश किया एंड एक्सपैरीमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलीमेंट। ਇਹਨੇ एलीमेंट की एक डेफिनेशन दी भी एलीमेंट हुंदा की है। रॉबर्ट बॉयल ने की किया, एलीमेंट एक वर्ड डिस्कवर किया। हाँ जी, कि एलीमेंट एक वर्ड है, एलीमेंट एक चीज़ हैगी है यूनीवर्स के विच। ठीक है। एंटोनी लेवाइजर ने की किया रजे, इन्हें डिस्कवर किया कि डेफिनेशन की एलीमेंट की हुंदा की है। उन्हें डिफाइन किया, ही डिफाइंड एन एलीमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सबसटेंसिस बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब कहते आप एनीमल सॉरी एलीमेंट नू तोड़ नहीं सकते। ठीक है, सिंपल सबसटेंसिस दे विच। ठीक है, किसी भी कैमिकल ये जोड़ा होंगे फिक्स रहता है। एलीमेंट्स ਨੂੰ 3 कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर सकते हैं। उसने कहा कि मैटल, नॉन मैटल ਤੇ मैटलॉइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, हाँ जी। नैक्सट डेफिनेशन देख लो, हुण मैटल की हुंदा, नॉन मैटल की हुंदा ते मैटलॉइड की हुंदा। मैटल अ मटीरियल दैट इज़ टिपिकल शाइनी। ये तुसीं 8th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ आई थिंक रीड किया होना मैटल एंड नॉन मैटल चैप्टर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ कि मैटल ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। शाइनिंग नेचर ਹੁੰਦਾ, लस्टरस ਹੁੰਦਾ, डक्टाइल ਹੁੰਦਾ, मतलब वायर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ड्रान कर सकते हैं, वायर्स बन सकदियां ने। ठीक है, हाई मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट हुंदा मैटल का, तो यह मैटल हुंदा जिहड़ा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी हुंदा। मैटलॉइड्स की हुंदा गा, ये जिहड़ा हुंदा कंबीनेशन प्रॉपर्टी शो कर दिंदा, मैटल दियां भी शो कर दिंदा प्रॉपर्टीज़ ते नॉन मैटल दियां भी। ठीक है। नैक्सट आ गया जी नॉन मैटल। नॉन मैटल की हुंदा है, टिपिकली गैसीयस, मतलब ये गैसीयस स्टेट दे विच हुंदा है वैसे। ठीक है, लो मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट होएगा, तो शाइनी नहीं होएगा, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी होएगा। डेफिनेशंस लर्न कर लियो बच्चे। ओके, हाँ जी। नैक्सट मैटल्स ते नॉन मैटल्स का डिफरेंस लर्न करना। ओके, लेट अस रीड। फर्स्ट डिफरेंस, मैटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी, नॉन मैटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है। मैटल्स आर मैलेबल दैट दे कैन बी बिटन इनटू शीट्स, मतलब इसमें जो हैमर नाल स्ट्रक करके आप इन्हू शीट्स बना सकते हैं। बट नॉन मैटल है जिहड़े मैलेबल नहीं होंगे, मतलब किस कोई चीज़ विच फोल्ड अप नहीं हो सकते। मैटल्स डक्टाइल होंगे है, वायर्स बन सकते हैं जिवें कॉपर दियां वायर्स होंदियां ने। ठीक है। नॉन मैटल की नॉन डक्टाइल होंगे है। मैटल्स आर सोनरस, सोनरस मीन कि साउंड प्रोड्यूस होंदी है जो मतलब टच करते हैं, हिट करते हैं। ठीक है। नॉन मैटल के विचों साउंड नहीं प्रोड्यूस होंदी, दे आर नॉन सोनरस। ठीक है। इसी तरह तुसीं सारियां प्रॉपर्टीज़ रजे रीड कर लियो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियो रजे इहदा एंड राइट ऑन जरूर करें नोटबुक ते। ठीक है। नैक्सट एग्जाम्पल्स दे रखी है रजे कि मैटल्स वैसे शो कर रखे कि मेन जी मैटल्स की एग्जाम्पल लिख रखी है, मेन नॉन मैटल्स दियाँ, मेन मैटलॉइड्स दियाँ। ठीक है, देख लो। मैटल दे विच आ गए गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, मैगनीशियम। ठीक है। नॉन मैटल्स आ गए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये सारी गैसिस नहीं आ रही, उत्ते पिछे लिखा होया सी ना कि गैसियस दे स्टेट दे विच ज़्यादा होंदे नॉन मैटल। ठीक है। मैटलॉइड्स दे विच आ गए बोरन, सिलिकॉन, अर्सनिक, एंटीमोनी, पोलोनियम। ठीक है, ये याद कर लियो रजित। कुछ एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल्स याद कर लियो सारे दियाँ। ठीक है। नैक्सट, द नंबर ऑफ एलीमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर दैन 100। एक पीरियोडिक टेबल होंगे रजे, सारे ने नैट ते सर्च करना पीरियोडिक टेबल ते देखना कि किदां दा हुंदा पीरियोडिक टेबल, किवें ग्रुप्स बने होंगे, किवें पीरीयड्स होंगे उस। ठीक है, तो ये देखना कि हुण करंट पीरियोडिक टेबल दे विच किन्ने एलीमेंट। ठीक है, देखो इन्होंने दसे कि कहते भी एलीमेंट्स हुण 100 तो ज़्यादा हैगे ने। ठीक है, 92 एलीमेंट्स तो कहते नैचुरली अकर च ने, मतलब नेचर तो मिलते हैं, तो बाकी है मैन मेड ने, मतलब लैब दे विच जां किवें भी मैन मेड ने बनाए हुए ने। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ एलीमेंट्स कहते सॉलिड ने। ठीक है, 11 एलीमेंट्स गैसीयस स्टेट दे विच रहिंदे ने जो रूम टैंपरेचर ते रखते हैं। 2 एलीमेंट्स लिक्विड नेगे रूम टैंपरेचर ते मरकरी ते ब्रोमीन। ये याद करना, मरकरी ते ब्रोमीन आर प्रेजेंट लिक्विड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टैंपरेचर। ओके, ठीक है। तो एलीमेंट्स गैलीयम ते सीजियम ने जेडे वो लिक्विड होंदे नेगे
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ रूम टैंपरेचर तो अबव, ठीक है, याद करने रजे ही। हुण देखो वट डू यू गैट वैन 2 और मोर एलीमेंट्स कंबाइन करते हैं। एक्टिविटी थोड़ी बुक के बड़े पढ़ लें आप, ठीक है। वैसे वो एक्टिविटीज़ 2.3 वाली सारियां आप बाद में कवर करांगे, ठीक है। ओके, लैट अस रीड दिस एक्टिविटी कि जो 2 एलीमेंट्स में आप कंबाइन करते हैं तो की होंदा है। डिवाइड दी क्लास इन 2 ग्रुप्स। पहला कहते 2 ग्रुप्स के विच डिवाइड कर लो जिहड़ी चीज़ जिहड़े एलीमेंट्स अपने कोले हैगे ने। जिमें गिव 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के पीसिस तो 3 ग्राम ऑफ अपने कोले सल्फर का पाउडर है। उन्होंने चाइना डिश एक लैब के होंगी, एक केमिस्ट्री लैब के, मतलब ये लैब का यूटेंसिल होंगे, ठीक है। ये चाइना डिश होंगी है, कहते टू बोथ ग्रुप्स। आप 2 ग्रुप बना लेने। एक ग्रुप के करते हैं मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स बिल्कुल मिक्स कर लेने सल्फर पाउडर के तो उन्होंने एम ही रख दें, हीट नहीं करते। दूजे ग्रुप के करते हैं, कहते भी उन्होंने मिक्स करके हीट कर दें स्ट्रोंगली, ठीक है। तो फिर की करते हैं फ्लेम में बुझा के उन्होंने ठंडा होने लिए रख दें। पहले ग्रुप के किया आयरन फिलिंग्स से सल्फर में हीट नहीं किया, मिक्स कर लिया, ठीक है। दूजे ग्रुप के किया उन्होंने हीट करांगे मिक्स करके। हम अपने को ऑब्जरवेशन आनी देखते हैं। कहते फिर की करो, एक मैगनेट लैके आओ। मैगनेट तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होना रजे, मैगनेट चुंबक, उन्होंने नेड़े लैके आओ मटीरीयल दे। कहते चैक करो भी किहड़ा मटीरीयल अट्रैक्ट होंदा मैगनेट वाल ते उहदा मैगनेटिज्म इफैक्ट आपां नूं पता चल जूगा। फिर कहते कि देखो कि उन्हां दा कलर ते टैक्सचर देखो भी जिहड़ा आपां ने हीट करिया उहदा कलर ते ओह किदां दा हो गया, अपीयरेंस किदां दा हो गया, तो जिहड़ा आपां ने हीट नहीं करिया तो ओह किदां दा हो गया, ठीक है। इस तो बाद कहते कार्बन डाईसल्फाइड नूं टू 1 पार्ट ऑफ मटीरीयल ऑबटेन, मतलब एक पार्ट दे विच आपां कार्बन डाईसल्फाइड पा दो, ठीक है। तो कहते फिर उन्होंने पूरी तरह मिक्स कर दो डाईसल्फाइड विच ते फिल्टर कर लो। इस तो बाद डल्यूट सल्फेरिक एसिड ते डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नूं पा दो दूजे पार्ट दे विच। मतलब करना की है देखो ध्यान नाल सुनो। ग्रुप 1 ते ग्रुप 2 सीगे अपने कोले। ग्रुप 1 नूं आपां ने हीट नहीं किया तो ग्रुप 2 नूं आपां ने हीट कर लिया, ठीक है। सब तो पहला कहते मैगनेट नूं लैके आओ। मैगनेट नाल चैक करो भी किहड़ा मैगनेटिज्म शो करता है, किहड़ा चुंबकी इफैक्ट वाल जांदा हैगा, ठीक है, अट्रैक्ट होंदा है। दूसरे नंबर ते कहते उन्हां दा कलर ते टैक्सचर चैक करो भी दोनों किदां दे हो गए, ठीक है। एक हीट करन तो बाद किदां दा हो गया, दूजा कल्ला मिक्स करन तो बाद किदां दा हो गया। इस तो बाद कहते एक च तां कार्बन डाईसल्फाइड पा दो, एक दे विच डल्यूट सल्फेरिक एसिड ते डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पा दो, ठीक है। दोनों च अलग अलग अपने एसिड्स पाए ने। ऑब्जरवेशन सारियां अपने को पहले मैगनेटिज्म वाले तो की पता चलिया, कहते जो मटीरीयल ग्रुप 1 का मटीरीयल है जिन्होंने अपने हीट नहीं किया सी वो मैगनेटिज्म इफैक्ट शो करूगा, बट दूसरा नहीं करूगा जिन्होंने हीट किया सी। तो सैकेंड जोड़ा ग्रुप 1 सीगा हैज़ टेकन अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उन्होंने हीट नहीं किया, उन्हें तो कल्ली फिजिकल चेंज ली है, पाउडर में मिक्स करे बस, सीधा हीट नहीं किया। जो हीटिंग होगी तो कैमिकल चेंज होगी, ठीक है। ग्रुप 2 की करेगा कैमिकल चेंज शो करेगा तो नवा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। थर्ड देखो ग्रुप 1 ने जोड़ा वो जो आपने की पाया सी कार्बन डाईसल्फाइड तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो डल्यूट सल्फेरिक एसिड पा के देखी सी, उन्होंने का की आया कहते जी गैस होएगी पहले ग्रुप चो तो हाइड्रोजन निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज लिखती इन्होंने कि हाइड्रोजन गैस कलरलैस होंगी है, ऑर्डरलैस होंगी है तो कंबस्टिबल होंगी है। तो जोड़ा दूजा ग्रुप सीगा जिन्हों हीट किया सीगा उहदे विच्चों आपां नूं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। तो ये गैस की होंगी है रजे कलरलैस होंगी है, तो यदी स्मैल रोटन एग्स मतलब खराब होए एग्स वर्गी होंगी है। तुहानूं क्वेश्चन आ सकता कि दूजे ग्रुप ने किदां दी शो की सीगी प्रॉपर्टी रिएक्शन करन तो बाद हाइड्रोजन डाईसल्फाइड आई सी जो उसकी स्मैल किदां दी सी, ठीक है। तो किदां दी गैस होंगी है, हाइड्रोजन गैस कलरलैस होंगी है तो हाइड्रोजन डाईसल्फाइड भी कलरलैस होंगी है, बट इसकी स्मैल रोटन एग्स वर्गी होंगी है, ठीक है। ये अपनी ऑब्जरवेशन आ गई। कनक्लूजन की निकले अपने को एक्टिविटी करन तो बाद कहते जिहड़े मटीरीयल्स ग्रुप 1 दे सी जिन्होंने सिर्फ मिक्स किया सी आयरन ते सल्फर नूं वो प्रॉपर्टी शो करते सीगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब वो तो सिर्फ कल्ला मिक्सचर बनया सीगा ना, मतलब जो हीट ही नहीं किया कल्ला मिक्सचर बनया सी आयरन ते सल्फर का, वो किदां दी प्रॉपर्टी शो करनगे। कहते मिक्सर हुंदा जिहड़ा मिक्सचर वो हमेशा उही प्रॉपर्टी शो करता जिहड़ियां चीज़ां तो वो बनया होवे, जिहड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो वो बनया होवे।
पहले च की पता चलिया कि जिहड़ा मिक्सचर है वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है एस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। नैक्सट द मटीरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सैकेंड कंपाउंड बन गया, जिन्होंने हीट करता कहते वो कंपाउंड बन गया। मेन अपना मोटिव यही सी कि आपने ये पता किया कि मिक्सचर किदां दी प्रॉपर्टी शो करता है कि किहड़ा मिक्सचर बनया किहड़ा कंपाउंड बनया। ठीक है। अगे इन्होंने कंपाउंड लिखता, कहते द मटीरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सैकेंड इज़ अ कंपाउंड। कहते ग्रुप सैकेंड तो जो मटीरियल ऑब्टेन होया कंपाउंड है, क्योंकि हीटिंग करन तो बाद जो दो एलीमेंट ने स्ट्रोंगली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करन लग गई। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट, वी कैन आल्सो ऑब्जर्व द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट। कहते जो कंपाउंड होंगे वह कलर हमेशा सेम ही रहता है, जो भावें हीट कर दो। ठीक है, सेम ही रहता है। अगे आप देखते हैं जी एलीमेंट की होंगे, मिक्सचर की होंगे, कंपाउंड की होंगे। ठीक है। एलीमेंट देखो, एलीमेंट होंगे ने जिमें आ देखो दिते हुए ना अलग अलग जे एलीमेंट, जो दो मिक्सचर कर जिमें आपने मन लो ये हाइड्रोजन के मॉलीक्यूल्स ने, जो दो इकट्ठे जुड़ गए, ठीक है राजे, तो H2 बन गया, दो H के मॉलीक्यूल। ठीक है। कंपाउंड्स की होंगे, कंपाउंड्स होंगे है जिमें दो H के मॉलीक्यूल्स जुड़ गए। ठीक है, दो H के मॉलीक्यूल जुड़ गए, एक अपना ऑक्सीजन का, ये दो एलीमेंट्स तो बनता है। ठीक है। मिक्सचर की होएगा, ये किमें भी बन सकता है, मतलब दो या तीन एलीमेंट्स तो। ठीक है। ओके। हाँ जी। एलीमेंट कंपाउंड के मिक्सचर की डेफिनेशन, एक्सिस्टेंस, प्रॉपर्टीज़ ते मैथड ऑफ सैपरेशन ते एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई ने। ठीक है। पहला डेफिनेशन लिखी एलीमेंट की, एंड एलीमेंट इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स ओनली। मतलब जोड़ा एलीमेंट होंदा वो सेम तरह के एटम्स तो बनया होंदा है, कदे भी उन्होंने ब्रोक करके सिंपल सबसटेंस दे विच नहीं तोड़ सकते। जोड़ा मिक्सचर होंदा है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सबसटेंसिस, दो या एक तो वध सबसटेंसिस तो बनया होंदा है। ठीक है। कंपाउंड होंदा जोड़ा वो डिफरेंट एलीमेंट्स तो बने होंगे। एग्जिस्टेंस की है, एलीमेंट्स अपने आप च एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड की है, ये उदों एग्जिस्ट करता है जो आप दो एलीमेंट्स मिक्स कर दें डेफिनेट प्रपोर्शन के विच। जिवें हमेशा वाटर बनूगा तो हमेशा वाटर एवं ही बनूगा, जो H के दो मॉलीक्यूल्स मिलणगे तो ऑक्सीजन का एक मॉलीक्यूल मिलेगा, फिर ही H2O कंपाउंड बनेगा। मतलब हमेशा उन्नी चीज़ें चाहिए ने एक कंपाउंड बनाने वास्ते। ठीक है। मिक्सचर है, देखो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन एनी, ये किमें प्रपोर्शन कोई जरूरी नहीं होंगे, जिमें H2O बनाने लिए अपन H2 पक्के चाहिए सी वाटर बनाने लिए, तो H एक चाहिए, बट ये कोई वो नहीं होता। ठीक है। अगे राजे इसका स्क्रीनशॉट लैके तुसीं ये रीड कर लो तो नोटबुक ते इहनूं पक्का लिखियो। ठीक है। मैथड ऑफ सैपरेशन ते एग्जाम्पल्स ने अगे। ओके। आई होप तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ चैप्टर समझ आ गया होना राजे। आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स आल्सो, राइट द क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक। ओके। ओके स्टूडेंट्स।